प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को सदा धन्यवाद मिले। और एक बार प्रभु ने बाइबल स्टडी करने का सुंदर मौका दिया ताकि उसका वचन जिन्हें नहीं सुनने को मिलता वहां तक पहुंच जाए। ये हमारा बाइबल स्टडी का हमें एम है। আমেন, আমেন। সবাইকে স্বাগত আমাদের আজকের বাইবেল স্টাডিতে। প্রভু আরেকবার আমাদেরকে সুযোগ করে দিয়েছেন নতুন ভাবে বাইবেল স্টাডি করার, লোকদের মাঝখানে পৌঁছে যাওয়ার জন্য। প্রভুকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। প্রভুর স্তুতি হোক। আমেন। आमेन। और बस हम दोनों मिलकर प्रभु के हाथ में गिर जाते हैं। पवित्र आत्मा को हम विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा ने हमारे विचार और हमारे शब्द का कंट्रोल लेना है। और बस जो ये बाइबल स्टडी से प्रभु हमारा कौन है और पहले से ही उत्पत्ति से लेके प्रकटीकरण तक उसका मनुष्य जात के लिए सुंदर एक योजना क्या है, ये हम समझने के लिए प्रभु ने बस प्रकटीकरण का आत्मा हमारे तरफ भेज देना है। आमेन। আমেন, আমেন। প্রভুকে অনেক ধন্যবাদ করি। প্রভুর হাতে আমরা নিজেদেরকে সমর্পণ করছি এবং প্রভুর আজকের এই বাইবেল স্টাডি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পবিত্র আত্মার নিয়ন্ত্রণে থাকুক, আমরা এই প্রার্থনা করছি। প্রভুর আশীষ আমরা কামনা করছি এবং যেন একদম শুরু থেকে আদি থেকে শেষ পর্যন্ত প্রভুর সমস্ত কিছুতে প্রভুর হাত থাকে, এই প্রার্থনা করে আমরা আজকের বাইবেল স্টাডি শুরু করছি। আমেন। ग्लोरी जीसस। हमारा स्लाइड हम लेते हैं, शेयर करते हैं। ग्लोरी जीसस। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। लास्ट टाइम हमने बाइबल धन्यवाद। स्टडी में हम शुरू से शुरू कर रहे हैं और फिर थोड़ा सा मैंने शुरुआत किया कि परमेश्वर पिता ने पहले आकाश अपने लिए तैयार की और फिर पिता परमेश्वर ने ये पृथ्वी निर्माण कर ली। তো আমরা এর আগের দিন এই সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। তো আমরা আবার সেখান থেকেই আবার শুরু করছি যে প্রভু ঈশ্বর প্রথমে আহ আকাশ তৈরি করেছিলেন এবং তারপরে পৃথিবী তৈরি করেছিলেন উনি। তো সেখান থেকে আমরা আবার শুরু করছি। আমেন। ग्लोरी जीसस। तो आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे बाइबल से और फिर देखते हैं कि लास्ट टाइम मैंने जो बोला कि एक वचन और दो वचन ये कितना बड़ा फर्क है। कोई तो कुछ तो हुआ है बीच में, ये हम मैं थोड़ा लाने की कोशिश की लास्ट टाइम। तो हम आज पढ़ कर देखेंगे हम और फिर हम आगे जाएंगे। तो তো यह या बोल दे। হুম তো আমরা লাস্ট টাইম এটাকে সংক্ষিপ্ত ভাবে করেছিলাম, কিন্তু আজকে আমরা একটু পড়ে পড়ে শুরু করব, যাতে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় যে এক্স্যাক্টলি আমরা কি বলতে চাইছি। তো আমরা আজকে একটু পড়ে পড়ে সেইভাবে আমরা শুরু করার চেষ্টা করব। আমেন। या तो अ, सुनते पढ़ते हैं। इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द earth, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. আদিতে ঈশ্বর আকাশ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল এবং অন্ধকার জলধির ওপরে ছিল, আর ঈশ্বরের আত্মা জলের ওপরে অবস্থান করেছিল। ঈশ্বরের আত্মা জলের ওপরে অবস্থান করেছিলেন। तो यही मैंने Amen। लास्ट टाइम बोला था कि पहले तो হুম लिखा है कि परमेश्वर पिता ने आकाश किया और पृथ्वी बनाई, ऐसा लिखा है। ऐसा नहीं হুম लिखा कि अ, बना रहा था या कुछ ऐसा ऐसा। प्रभु ने लिखा है कि आकाश और पृथ्वी प्रभु ने पहले बनाई, ऐसा लिखा है। तो इसका मतलब हम হুম ले सकते हैं कि ये पृथ्वी बनाई हुई थी पहले ही। लेकिन दूसरे ही वचन में हमें कुछ अलग सा पढ़ने को मिला यहाँ पर, जिसमें लिखा है कि ये पृथ्वी अभी ऐसी है ये,
कि जिसको कोई हम्म। फॉर्म ही नहीं है, शेप नहीं। शेप नहीं है, पूरा हम्म। डिस्ट्रॉय हो गई है शायद, ये इसको कुछ नहीं है, कोई एम्प्टी है, कुछ नहीं इसमें, और अंधकार में है, और पानी में है ये। पानी में तो जैसे जैसे हम्म। हम डीप अंदर जाते हैं तो अंधकार ही अंधकार रहता है वहां पर, वहां पर प्रकाश नहीं हम्म। जाता है। तो ऐसे ठिकाने पे है ये। और लेकिन एक बात है यहाँ पर कि परमेश्वर का आत्मा उस पर मंडरा रहा था। ऐसी आमेन। ऐसी बात है ये। तो या তো আমরা প্রথম বচনে দেখতে পাচ্ছি যে প্রভু ঈশ্বর শুরুতে আকাশ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। তো আকাশ আগে সৃষ্টি হয়েছিল, তারপর পৃথিবী। এগুলো আমরা আগেই বলেছিলাম, এর আগের ভিডিওতে আমরা পড়েছিলাম। তো তার পরের বচনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পৃথিবী এমন একটা অবস্থায় ছিল যার কোনো আকার ছিল না, যেটা আহ হয়তো বা কোনো কারণে বিনষ্ট হয়ে যাওয়া বা কোনো কারণে, কিন্তু এর থেকে আমরা ধরতে পারি পৃথিবী আগের থেকেই ছিল। হতে পারে সেটার কোনো শেপ নেই, যেটা শূন্য, যেটা যেটাতে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই, কিন্তু সেটা ছিল, এবং সেটা অন্ধকার এবং জলের উপরে ছিল, জলের উপরে তার অবস্থান ছিল। এর এই দুটো বচনের মধ্যে যেটা সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থান করছিলেন, মানে প্রভু ঈশ্বরের যে পবিত্র আত্মা, সেই প্রভু ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে ছিল। এর দ্বারা আমরা জানতে পারি। आमेन আমেন। आमेन। तो अ, तो इसका मतलब ये भी हम ले सकते हैं कि कुछ तो हुआ है, नष्ट, पूरा डिस्ट्रक्शन यहाँ पर हुआ है, लेकिन जो भी है ये पृथ्वी, पिता परमेश्वर फिर भी इसका अभी संरक्षण कर रहे हैं। पवित्र आत्मा उसके ऊपर मंडरा रहा है, क्योंकि उसको তো परमेश्वर का पिता का प्लान कोई अलग होगा, ऐसा ही लगता है। क्योंकि अगले ही वचन में हम देखते हैं कि हमारे पिता परमेश्वर उसमें से ही कैसे ये पृथ्वी হুম। बनाते हैं। हालेलुया। আমেন। আমেন। তো আমরা যেটা দেখতে পারলাম যে যাই হয়ে যাক না কেন, পৃথিবীর কোনো আকার নেই, কোনো অন্ধকার কিছু নেই, তবুও প্রভু ঈশ্বরের আত্মা একে সুরক্ষা দিচ্ছে, কারণ ঈশ্বরের আত্মা জলের উপর অবস্থান করছে, এটা লেখা আছে। যাই হয়ে যাক ঈশ্বর তাকে সুরক্ষা করছেন, কারণ প্রভু ঈশ্বর হয়তো এটার মধ্যে থেকে প্রভু ঈশ্বর অন্যভাবে পৃথিবীকে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, কিংবা তার পরিকল্পনা অন্য কিছু। সেই আহ এর পরের বচনেই আমরা দেখতে পারি যে প্রভু ঈশ্বর ঠিক এই অবস্থা থেকেই আবারও পৃথিবীকে নতুন ভাবে সৃষ্টি করলেন। আমেন। चलो अभी देखो तीसरा वचन की तरफ हम जाते हैं। तो ये वचन में लिखा है, एंड गॉड सेड लेट देयर बी Yes. लाइट, एंड देयर হুম। वाज लाइट। আমেন। তো 3 নম্বর বচনে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা, ঈশ্বর পরে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হোক, তাহাতে দীপ্তি হইল। মানে আলো আসুক, মানে আলো হোক, এইভাবেই প্রভু ঈশ্বর পরের বচনে বললেন। আমেন। तो अभी देखो ये पृथ्वी क्या थी, क्या था इस पृथ्वी में, अंधकार क्या था, प्रकाश क्या था, कुछ कुछ हमें मालूम नहीं है। पिता ने भी बताया नहीं कि कैसी पृथ्वी उसने बनाई थी। लेकिन इस पृथ्वी में परमेश्वर पिता ने जैसे भी बनाई, अभी वो हमें बताता है कि उसमें क्या क्या था। क्योंकि वही उसने হুম। उस पृथ्वी से जो पहले बनाई थी, तो वही उसकी आइडिया से उसने अभी वो बुला रहा है, लेट देयर बी लाइट, वहां पर হুম। प्रकाश हो।
क्योंकि अभी अंधकार ही है वहां पर, तो प्रकाश की जरूरत है। ये प्रभु को ही मालूम, ये हमें नहीं समझ में आएगा। ये हम्म, अंधकार में है अभी। अभी अंधकार को निकालने के लिए प्रकाश की जरूरत है। ये बस परमेश्वर पिता को ही मालूम। और इसीलिए वो आमेन। पहले ही प्रकाश बनाते हैं प्रभु, और बस बोलते हैं कि लेट देयर बी लाइट, प्रकाश हो हम्म, जाए। यानी कि प्रभु को मालूम है, हाँ, आमेन, प्रकाश क्या है ये। और वही बोलते हैं प्रभु आमेन। कि प्रकाश अभी, शायद शैतान ने ऐसा कुछ किया कि उल्टा सब हो गया। जहां पर प्रकाश था वहां पर अंधकार हो गया। जहां पर ये पृथ्वी सजी हुई थी वहां पर डिस्ट्रक्शन हो गया था। जहां पर ड्राई लैंड होगी वहां पर अभी ये पानी ही पानी हो गया था। और जहां पर जैसे हम हम्म, जागे जागते हैं तो हमें यही सिलसिला नजर आता है। आमेन, आमेन। ग्लोरी जीसस। Amen. তো যেটা আমরা আহ, পড়লাম যে আহ, তারপর ঈশ্বর বললেন যে দীপ্তি আসুক বা আলো ফুটুক। কারণ প্রভু ঈশ্বরকে প্রভু ঈশ্বর যে পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন, যেটার কথা আমরা শুরু থেকেই এখানে পাই, বাইবেলের শুরুতে, যেটা একদম অন্ধকারে, যেটার কোনো শেপ নেই, কিন্তু তবুও প্রভু সেই পৃথিবীকেই প্রভু ঈশ্বর বলেছেন যে আলো ফুটুক। আর ঠিক তখনই আলো ফুটতে আরম্ভ করলো, কারণ একমাত্র প্রভু ঈশ্বরেরই পরিকল্পনা অনুসারে এগুলো হচ্ছে। কারণ আমরা আমাদের বোঝার সেই ক্ষমতা নেই যে সেখানে অন্ধকার ছিল বা সেটার জন্য আলো, উম, যেটাকে বলি, যেটা প্রকাশ বলি যেটাকে, সেটা ঠিক কতখানি বা কতটাই তার বিস্তৃতি, সেই হিসেবে আমাদের কোনো ধারণা নেই ঠিকই। কিন্তু প্রভু ঈশ্বরের সেই সম্পর্কে, প্রভু ঈশ্বরের যা পরিকল্পনা, সেই অনুসারেই প্রভু ঈশ্বর বললেন আলো ফুটুক। আর সেখানেই আলো ফুটে উঠতে শুরু করলো। आमेन, Amen. हालेलुया। Amen. Yeah. तो प्रकाश हो गया अभी, पहली बात। सच में हमारी जिंदगी में भी अगर हम देखें तो अंधकार में कौन रह सकता है, और अंधकार में क्या कर सकते हैं हम। इसीलिए प्रकाश की बहुत जरूरत है। और इसीलिए आमेन। घर में भी हम आते हैं, अंधकार, शाम को अंधकार होता है तो पहले हम लाइट जला देते हैं ताकि हम लाइट कुछ जला कर दे। सके। अभी यहाँ भी सिचुएशन ऐसी ही है। अगर पिता परमेश्वर को, ऐसा नहीं कि प्रभु कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये हमें प्रभु दिखा रहे हैं कि अंधकार में कुछ नहीं हो सकता, प्रकाश में। जैसे आमेन। हमारे जीवन में भी ऐसा है, अंधकार में जीने से किसी का, हमारा खुद का भला नहीं होता है एनीवे, लेट अलोन परमेश्वर की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। तो प्रकाश की बहुत जरूरत है। यहाँ पर प्रभु ने प्रकाश किया है। आमेन। তো যেরকম আমরা আমাদের জীবনে দেখতে পাই যে অন্ধকারে আমরা বাঁচতে চাই না বা বাঁচতে পারি না, অন্ধকার আমাদের জন্য ভালো নয়। যেমনই আমরা যখন ফিরে আসি ঘরে, বা আমরা কোথা থেকে আসি সেখানে যদি সন্ধ্যা হয়ে যায়, বা অন্ধকার রাতে আমরা বাড়ি ফিরে আসলাম বা কোথা থেকেও আসলাম, বা কিছু হয়তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না যে কি পরিস্থিতিতে আমাদের ঘর বাড়ি আছে বা কোনো কিছু আছে, বা রাস্তায় কোনো কিছু অন্ধকার রয়েছে, সেখানে আমরা সবার আগে বাড়ি ফিরে এসে হয়তো লাইট দিই, যে যা যা, কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি না যে অন্ধকারে কি রয়েছে না রয়েছে। সেজন্য আমাদের আহ আলোর দরকার হয়, কারণ অন্ধকারে আমরা কোনো কিছুই করতে পারি না, বা কোনো কিছুই আমাদের পক্ষে করা সম্ভব হয় না যেটা আলোতে আমরা করতে পারি। আহ আমাদের জীবনের ক্ষেত্রেও তাই, যে অন্ধকারময় জীবন কারোরই ভালো লাগে না, কিন্তু প্রকাশময়, আলোময় যে জগৎ, যে আমাদের জীবনের যে অন্ধকারটাকে কেটে নিয়ে যায়, সেটা আমরা সবাই পছন্দ করি বা ভালোবাসি। ঠিক সেই রকমই প্রভু ঈশ্বরের আশিস আমাদের জীবনে আলোর মতো, প্রকাশের মতো। তাই প্রভু ঈশ্বর আমাদের পৃথিবীকেও শুরুতেই বলেছিলেন যে আলো আসুক বা আলো ফুটুক। ঠিক তখনই আলো ফুটতে আরম্ভ করলো। আমেন, Amen. हालेलुया। Amen. और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रकाश हो गया है यहाँ पर। ये वचन में, 4 वचन में अभी, एंड गॉड सॉ द लाइट that it was good. गुड।
And Amen. yeah, तो and God divided the light from the darkness. तो प्रभु ने Hmm. ये देखा कि ये प्रकाश हो गया है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। Amen. प्रभु की नजर में ये प्रकाश बहुत अच्छा है, ऐसा लिखा, इट वॉज गुड। और फिर प्रभु ने Hmm. ये अंधकार को अलग किया और प्रकाश को अलग किया। ग्लोरी जीसस। Amen. আলো এর পরের 4 বচনে আমরা দেখতে পাই যে আলো দেখে ঈশ্বর বুঝলেন আলো ভালো, তখন অন্ধকার থেকে ঈশ্বর আলোকে পৃথক করলেন। কারণ প্রভু ঈশ্বর আহ আহ, এটা বুঝতে পারলেন যে যে আলোটা যে প্রকাশ হয়ে গেছে, যে আলো ফুটে উঠেছে, সেটা খুব ভালো। এবং তখনই অন্ধকার থেকে আলোকে প্রভু ঈশ্বর আলাদা করলেন। আমেন। Amen। और फिर 5 वचन में हम देखते हैं कि अभी ये अंधकार और प्रकाश अलग है, लेकिन इनको नाम दिया হুম। है अभी प्रभु ने। तो 6 वचन में हम 5 वचन में हम देखते हैं कि प्रभु ने and God called the light day and the আমেন। darkness he called night and evening and the morning first day। तो पुराने আমেন। जमाने में प्रभु के जबकि तभी सुबह और शाम एक दिन माना जाता था, ऐसा। तो হুম। इवनिंग एंड द मॉर्निंग ये फर्स्ट डे हो गया। एंड तो प्रभु ने इसको क्या, दिन और रात ऐसा बुलाया उसको, হুম। जो हमारे लिए आज बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिन में हम काम करते हैं और रात में प्रभु ने ये आराम के लिए रख दिया। प्रभु ने जहां पर हमारे হুম। शरीर को, हमारे मन को तो आराम ही लगता ही है, लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर पिता अपने लोगों के जीवन में काम करते हैं रात। पवित्र आत्मा मनुष्य को आत्मा का परीक्षण करता है और हमें घड़ाता भी है। हालेलुया। আমেন। আমেন। তো 5 নম্বর বচনে আমরা দেখতে পাই ঈশ্বর এই আলোর নাম দিলেন দিন এবং অন্ধকারের নাম দিলেন রাত্রি। তো যেটা আলোময় সেটার নাম হলো দিন এবং অন্ধকারময় সময়ের নাম হলো রাত্রি। এবং সন্ধ্যা হলো এবং সেখানে সকাল হলো। পুরানো নিয়ম অনুযায়ী আগে সন্ধ্যা এবং সকালে ছিল, অর্থাৎ দিন এবং রাত। তো এই হলো প্রথম দিন, অর্থাৎ প্রথম দিনে এইভাবেই প্রভু ঈশ্বর সমস্ত কিছু করলেন। অন্ধকারময় জগতের নাম হলো রাত্রি এবং আলোর নাম হলো দিন। এইভাবেই প্রথম দিন কেটে গেল। आमेन। Amen. अभी हमारे 6 वचन में हम देखते हैं कि गॉड सेड लेट देयर बी firmament in the midst of the waters and let it divide the waters from the waters। तो प्रभु ने হুম। फिर एक भाग किया, पानी पानी है सब ये, अभी पानी को डिवाइड হুম। किया है प्रभु ने। तो पानी नीचे হুম। भी है और ऊपर भी पानी है, तो ये प्रभु ने ऐसा कर दिया। और पानी पानी से पानी, इसलिए हम ओशन है, सीज है, रिवर्स है और হুম। वेल्स भी है, ये स्प्रिंग्स बहुत सारे हैं। तो ये पानी का नेचर जो है प्रभु ने पूरा डिवाइड कर दिया। আচ্ছা। হুম। তো 6 নম্বর বচনে প্রভু ঈশ্বর বললেন, তারপর ঈশ্বর বললেন যে জলকেই দুভাগ করবার জন্য এবং আকাশমণ্ডলের বাবদ। জলকে দুভাগ কেন? কারণ আমাদের এই যা সমুদ্র, পুকুর, বিভিন্ন ধরনের জলাশয়, বিভিন্ন ধরনের যেটা জল, সেই জলের যে ভাগ, সেটাকেই প্রভু ঈশ্বর 2 ভাগ করার জন্য বললেন। আমেন। Amen। और फिर 8 वचन में लिखा है कि प्रभु ने इनको नाम दिए, फिर प्रभु बनाता है और उनको नाम देता है। तो यहाँ पर लिखा है God called the firmament heaven and the evening and the morning were the second। तो ये जो हम आकाश देखते हैं
इसको फर्स्ट हेवन बोलते हैं, फर्स्ट हेवन। तो इसको हेवन लिखा है बाइबल के हिसाब से। एटलीस्ट बहुत सारे लोग सात हेवन है बोलते हैं, लेकिन बाइबल के हिसाब से हमें एटलीस्ट तीन हमें मालूम है। ये आकाश फर्स्ट हेवन है, और जहाँ सूर्य चंद्र तारे रहते हैं वो दूसरा, और तीसरा हेवन शायद परमेश्वर का राजासन होगा। আমেন, গ্লোরি। তো 7 নম্বর বচনে যেমন আমরা দেখলাম যে ঈশ্বর আকাশমণ্ডলের সৃষ্টি করে জলকে পৃথক করলেন, এবং এক ভাগ জল আকাশমণ্ডলের ওপরে, অন্য ভাগ আকাশমণ্ডলের নিচে থাকলো। কিন্তু 8 নম্বর বচনে ঈশ্বর আকাশমণ্ডলের নাম দিলেন আকাশ। তারপর সন্ধ্যা হলো, তারপর সকাল হলো, এইভাবেই দ্বিতীয় দিন কেটে গেল, যেটার আকাশমণ্ডলের নাম দিলেন আকাশ। যেমন আমরা জানতে পারি আমাদের যে হয়তোবা সাত স্বর্গের আমরা কথা পড়েছি, যে কিন্তু বাইবেলের অনুসারে আমরা তিনটেই কথা জানি, যেটা 1 নম্বর এই আকাশ, আর বাকি সূর্য চন্দ্র যেখানে থাকে সেটা, আর হয়তোবা যেটা প্রভু ঈশ্বর রয়েছেন স্বর্গে তার রাজাসনে, সেটাকে আমরা বলতে পারি যে স্বর্গ। আমেন, হালেলুয়া। तो नौ वचन में अब आगे जाते हैं हम। अभी देखो प्रभु का प्रोसेस चल ही रहा है। God said, let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let there be dry land appear, and it was so. जैसे प्रभु ने बोला वैसे ही सब कुछ हो रहा है। यहाँ लिखा है कि प्रभु ने बोला कि जो भी पानी है अंडर द हेवन, ये पृथ्वी पर, क्योंकि अभी दो विभाग हो गए हैं। प्रभु ने ऊपर किया और नीचे, तो नीचे तो अभी पानी ही पानी है अभी। तो अभी प्रभु ने कहा कि जो भी पानी है वो एक तरफ जाए, उसका फिर समुन्दर बने या ओशन बने या कुछ भी बने, लेकिन अलग हो जाए, और उसी से ड्राई लैंड भी हो जाए, कोरडी जमीन भी हो जाए। और वैसे ही इस लिखा है एंड इट वाज सो, यानी कि ऐसे ही हो गया। आमेन। ये हमारे प्रभु के शब्द है। ये प्रभु ने ये दुनिया अपने शब्द से बनाई है। पहले तो बनाई होगी कैसे हमें मालूम नहीं, लेकिन अभी ये पूरी दुनिया किसी स्टेट में है, वो खाली अपने शब्द से बना रहे प्रभु। लेट देयर बी लाइट, और लाइट हो गया। लेट देयर बी वाटर एंड अ ड्राई लैंड हैपन, वैसे ही हो गया। ऐसे प्रभु के शब्द देखो। और ये बाइबल के शब्द बहुत, यही हम लाना चाहते हैं कि हमारे परमेश्वर का जो जिंदा परमेश्वर है, यही उसके वचन, उसके एक्शंस, और उसका जो भी आज तक चल रहा है वो सब उसको दिखाता कहीं ये परमेश्वर है ये। और एक वचन है, एक मिनट, साम 19 में है। देखो साम 19 में एक लिखा है कि ये कैसे प्रभु के वचन जो अभी ये देखो, ये प्रभु ने ये वचन बोले हैं, ये वचन ये कैसे कैसे आगे जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये साम 19। ये ब्यूटीफुल है। ये देखो क्या लिखा है यहाँ पर, तो ही पढ़ ले शुरू से। हाँ, আকাশমণ্ডল ঈশ্বরের, ओके या तो 6 तक पढ़। ओके, बहुत ही सुंदर আকাশমণ্ডল 6 तक पढ़। আমেন, ঈশ্বরের মহিমা বর্ণন করে, বিতান তার হাতের তৈরি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির কথা ঘোষণা করে। প্রতিটি দিন নতুন দিন ঈশ্বরের মহত্বের কথা বলে। প্রতিটি রাত্রি ঘোরতর ভাবে ঈশ্বরের জ্ঞান প্রকাশ করে।
প্রকৃতপক্ষে তুমি কোনো কথা বা শব্দ শুনতে পাবে না। আমাদের কানে শোনার মতো কোনো শব্দ তারা সৃষ্টি করে না, কিন্তু তাদের রব সারা পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করে রাখে। তাদের শব্দ সকল পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছয়। সূর্যের কাছে আকাশ একটি বাড়ির মতো। সকালের সূর্য বাসর ঘর থেকে পরিতৃপ্ত বরের মতো বেরিয়ে আসে। সূর্য হচ্ছে একজন দৌড়বাজের মতো, আকাশের এপার থেকে ওপার পর্যন্ত তার Amen. দৌড়ের প্রতিযোগিতায় Glory Jesus. দৌড়বার জন্য উদ্গ্রীব। সূর্য আকাশের এক দিক থেকে দৌড় শুরু করে এবং সারা রাস্তা দৌড়ে দৌড়ে আকাশের অন্য প্রান্তে গিয়ে দৌড় শেষ করে। তার তাপ থেকে কিছুই লুকিয়ে থাকতে পারে না। প্রভুর শিক্ষাগুলিও ঠিক এই রকম। আমেন लॉर्ड, थैंक Amen. यू फादर। Beautiful है एकदम। कितना सुंदर लिखा है। बहुत सुंदर। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन करता है। आमेन। आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। दिन से दिन बातें करता है, दिन से दिन दे हैव टू पास ऑन, एक दूसरे को वो पास करते हैं। दिन दिन से रात, रात से ज्ञान सिखाती है। जो शब्द बोले वो ज्ञान प्रकाश न तो कोई बोली है ना तो कोई भाषा है उनमें, लेकिन जहां उनका शब्द सुनाई भी नहीं देता किसी को, क्या कर रहे हैं, कैसे वो पास कर रहे हैं मैसेज, उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडल खड़ा कर दिया, जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वो शूरवीर की नाई अपनी दौड़ दौड़ते हर्षित होता जाता है। ये बड़ा सुंदर है। ये परमेश्वर अपनी बनाई हुई सृष्टि को भी कितना रूप देता है, वैसे उसने हमें भी सुंदर बनाया है। परमेश्वर की नजर में उसके लोग बहुत अनमोल है। आगे जाकर हम देखने वाले हैं कि प्रभु ने मनुष्य को कैसे बनाया है, लेकिन आज हम बस थोड़ा और हमारे पास अब 10 मिनट रह गए हैं, इसलिए आज हम खत्म करने की कोशिश करेंगे कि हम प्रभु ने कैसे बनाया है। तो हम यहाँ तक आए हैं कि अभी प्रभु ने ड्राई लैंड और पानी अभी अलग कर दिया है। 11 वचन में, अभी देखो 10 वचन में लिखा है कि गॉड कॉल द ड्राई लैंड अर्थ। आगे का स्टेप अभी देखो, उसने ड्राई किया, पानी अलग किया, जमीन तैयार कर दी। अभी ये देखो, ये जमीन को कॉल द ड्राई लैंड अर्थ, उसने ये पृथ्वी बना, उसे बोला पृथ्वी है ये। तो ड्राई लैंड पर पृथ्वी बनाई, और गैदर टुगेदर वाटर कॉल सी, और जिसको भी पानी एक किया वहां उसे वो समंदर बोला। प्रभु को बोलता है कि ये सुंदर है। अभी अलग है, इसको शेप आ रहा है, कोई शेप नहीं था, अभी उसको शेप आ रहा है। हालेलुया। और फिर 11 वचन में प्रभु बोलते हैं कि ये ड्राई लैंड पर अभी हरियाली आ रही है, ग्रास, फिर हर तरह के हर्ब्स, सीड्स है, फ्रूट्स है, और ये पृथ्वी पर है। ग्लोरी जीसस। हर तरह की। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, यहाँ तक रुकते हैं हम। তো এর আগে আমরা 8 নম্বর বছর পর্যন্ত পড়লাম। তারপর 9 থেকে যে ঈশ্বর বললেন যে আকাশের নিচের জল এক জায়গায় জমা হোক, তাতে শুকনো ডাঙা দেখা যাক, এবং তাই হলো। তাই হলো, কারণ প্রভু ঈশ্বরের বচন প্রভু যেভাবে বলছেন ঠিক সেইভাবেই তৈরি হচ্ছে। কারণ এক জায়গায় শুকনো হয়ে গেল, সেটাকে ডাঙা বললো, এবং
তাই হলো। এবার 10 নম্বর বচনে ঈশ্বর শুকনো জমির নাম দিলেন পৃথিবী, এবং এক জায়গায় জমা জলের নাম দিলেন মহাসাগর। ঈশ্বর দেখলেন ব্যবস্থাটা ভালো হয়েছে, কারণ প্রভু ঈশ্বরের ব্যবস্থা সবসময় ভালো, এবং প্রভু বললেন যে ব্যবস্থাটা ভালো হয়েছে, পৃথিবী এবং মহাসাগর ভালো হয়েছে। এবং 11 নম্বর বচনে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তখন ঈশ্বর বললেন, পৃথিবীতে ঘাস হোক, শস্যদায়ী গাছ ও ফলের গাছপালা হোক, ফলের গাছগুলিতে ফল এবং ফলের ভেতরে বীজ হোক, প্রত্যেকটি উদ্ভিদ আপন আপন জাতের বীজ সৃষ্টি করুক, এই সব গাছপালা পৃথিবীতে বেড়ে উঠুক। আর তাই হলো। जीसस। পৃথিবীতে ঘাস আর শস্যদায়ী উদ্ভিদ উৎপন্ন হলো, আবার ফলদায়ী গাছপালাও হলো, ফলের ভেতরে বীজ হলো, প্রত্যেক উদ্ভিদ আপন আপন জাতের বীজ সৃষ্টি করলো, এবং ঈশ্বর দেখলেন ব্যবস্থাটা ভালো हয়েছে। আমেন, হালেলুয়া। तो इतना प्रभु ने किया। फिर इम्पोर्टेंट बात अभी ये 12 वचन की है, यहाँ से शुरू इम्पोर्टेंट। ये जो भी सीड्स है ये अपने ही काइंड को जन्म देते हैं। अगर हम्म। प्रभु ने हर्ब कौन सा भी लगाया है वहां पर, तो उसका जो सीड है वो उसी तरह का ही फल लाएगा, वो दूसरा फल नहीं लाएगा। हम्म। यही इंपॉर्टेंट है। ये 12 वचन में ही लिखा है। प्रभु ने ग्रास हर्ब्स जो डाले हैं, वो बोल लिखा है सीड्स इन इटसेल्फ एंड हिज काइंड, अपने ही जैसे बनाए, हम्म। दूसरा कुछ नहीं आएगा उसका। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट परमेश्वर हम्म। पिता का। और प्रभु को फिर बोलते हैं प्रभु की ये अच्छा है। Amen, amen। তো 12 নম্বর যে বচন আমরা দেখলাম, এখানে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে ফলের ভেতরে বীজ তো হলো, কিন্তু প্রত্যেকটা উদ্ভিদ আপন আপন জাতের বীজ সৃষ্টি করলো, অন্য কোনো নয়। যার যে ফলের যে সমস্ত বীজ, যারই যে সেটা সেই বীজ সেই গাছেরই জন্ম দেবে, এই ধরনের ব্যবস্থাপনা প্রভু ঈশ্বর এর মধ্যে দিয়েছেন, যে প্রত্যেকটি উদ্ভিদ আপন আপন জাতের বীজ সৃষ্টি করলো, এবং ঈশ্বর দেখলেন ব্যবস্থাটা ভালো হয়েছে। ग्लोरी আমেন। जीसस। तो मुझे लगता है यहाँ पर हमें स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि टाइम 3-4 मिनट रह गए शायद। तो इम्पोर्टेंट बात है, प्रभु जो भी कर रहे हैं यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट इसमें लेसन है, क्योंकि ये सब प्रभु कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं और सब कुछ अच्छा है बोल रहे। सबको एक नियम दिया है, अपने नियम के अनुसार चलेंगे वो लोग। दिन दिन को बताएगा उसका क्या काम है, रात रात को बताएगा। इसीलिए प्रभु बोलते कि हर तरह आगे जाकर हम और भी पढ़ेंगे उसके लिए। वैसे हमारी जिंदगी में भी है कि प्रभु ने हमारी भी जिंदगी में, हम देखने वाले हैं कि मनुष्य को कैसे बनाया, और फिर हम ज्यादा उसके बारे में बोलेंगे। यहाँ पर हमारा बाइबल स्टडी हम खत्म करते हैं, और बस प्रभु को हम विनती करते हैं कि जो ये वचन आज हम लेकर आए हैं, बस सुनने वालों को आशीषित करे। और वचन, जैसे हम बोलते हैं कि ये वचन, प्रभु का वचन जीवित और सजीव और काम करता है, वो अंदर तक जाता है और मन का परीक्षण करके मनुष्य का जीवन बदल देता है। आज हम यही प्रार्थना আমেন, करेंगे कि यही सिलसिला सुनने वालों के जीवन में हो जाए। আমেন, আমেন। তো আজকের আমরা এই এই পর্যন্তই শেষ করছি। আগামী দিনে আবার আসবো এইটারই অধ্যায় নিয়ে। তো যেভাবে আমরা বললাম যে প্রভু ঈশ্বর যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার পরিকল্পনা অনুযায়ী, এবং সেটা খুব ভালো। এবং আহ এইভাবে প্রভু ঈশ্বর আমাদের জীবনকেও ঠিক প্রত্যেকটা মুহূর্তে, প্রত্যেকটা ছোট ছোট পরিকল্পনার দ্বারা আমাদের জীবনকেও তিনি সাজিয়ে তুলেছেন এই পৃথিবীর মতোই। তো যারা শুনছেন দর্শক মন্ডলী, তাদের উদ্দেশ্যেও আমাদের এই প্রার্থনা থাকবে যে আহ এই প্রভুর বচন যেটা জীবন পরিবর্তন
প্রস্তুতকারী প্রভু ঈশ্বরের যেটা জীবিত বচন, এই জীবিত বচন যেন প্রত্যেকের জীবনে কাজ করে এবং নতুন ভাবে তাদের জীবনকে সাজিয়ে তোলে, তাদের জীবনে নতুন ভাবে পরিবর্তন নিয়ে আসে, আমাদের আহ সবার জীবনের মতোই নতুন ভাবে সবকিছু সৃষ্টি করে। আমরা এই প্রার্থনাই করব। আজকের মতো আমাদের বাইবেল স্টাডি এখানেই শেষ করছি। সবার জন্য প্রভু ঈশ্বরের আশীষ বর্ষিত হোক। আমেন। आमेन। इसके साथ हम बाइबल स्टडी हम खत्म करते हैं आज के लिए, और फिर मिलते हैं। तब तक प्रभु हम सबको उसके वचन में पक्का रखे। আমেন। আজকের বাইবেল স্টাডি এখানেই Lord শেষ করছি। Jesus. আবার ফিরে আসবো প্রভুর বচন নিয়ে। আমেন। Amen. God bless. Next time तक मिलते हैं। Amen. আমেন।